Okay. So next again I have to start with reaction intermediate. The next reaction intermediate, that is carbene, which can be called as methylene also. Okay, so already I say that in the previous lecture already I discussed about carbocation, carbanion. So today I have to discuss on carbene, and carbene is very much vital one. Why? Because most of the people having some confusion about the carbene. Okay, remember that. That's why carbon is very much important. Carbocation is very much easier to understand, because if you understand the stability factors, how the carbocation should get stabilized, and also their corresponding properties, then that is easier to understand the phenomena of carbocation. Similarly, carbanion also easy to understand, but carbon is much more difficult to understand, because there should be two type of carbon, and singlet and triplet, and their respective stability, their respective properties, their respective features making confusion for among the students. Okay, so that's why carbene is very much important, but we never ignore the carbene. Why? Because so many popular reaction where the carbene incorporate, carbene can make insertion, carbene can make addition, carbene can make ring enlargement. So many reaction can be carried out due to carbene. Okay, and that's why this is very important to understand the carbene intermediate. Okay, so not for only PGT chemistry, I also discuss this lecture on the base of BSc, MSc, CSNET, WBSET, GATE, BARC, as well as for PGT chemistry, because this is very fundamental. Okay, so that's why this is very important. Okay, like as for example, I already tell, that is there must be pyrrole to pyridine, chloropyridine, 3-chloropyridine can be produced due to reaction with carbene. Okay, there must be sometimes alkene to cyclopropane type structure can be produced due to carbene addition process. There must be so many reaction can be carried out due to carbene. And remember that there must be, when the stepwise reactions when come in the any entrance exam, and you have to predict the product, there most of the cases in the exam the carbene is given, because most of the people, first one there must be problem arises, first one many people never identify, that is this is the reaction of carbene. This is the first problem. And second problem, that is there should be how the carbene reacted and what is the product. This is a triplet or singlet carbene. So many confusion can be gathered. That's why there must be examiner give this carbene for the step wise mechanism. Okay, ज़्यादातर लोग का क्या होता है प्रॉब्लम, जब रिएक्शन में बहुत सारा स्टेप होता है और स्टेप्स करके अल्टीमेटली आपको मेजर प्रोडक्ट या माइनर प्रोडक्ट या अल्टीमेट प्रोडक्ट आपको प्रेडिक्ट करना है, तब क्या होता है ज़्यादातर लोग यही समझ नहीं पाता है वो रिएक्शन में इन सिटू कार्बिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और बहुत लोग तो ये भी नहीं समझता है कि कार्बिन कौन सा कार्बिन होगा, सिंगलेट होगा या ट्रिपलेट होगा, उसका कैसा फीचर होता है, कैसे रिएक्शन होता है, अल्टीमेट प्रोडक्ट कैसा हो सकता है। तो ज़्यादातर लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है। आप जब कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन या बेंजाइन इंटरमीडिएट को बोलोगे, देखना लोगों का कन्फ्यूजन लेवल बहुत कम होता है। लोगों का कन्फ्यूजन ज़्यादातर होता है कार्बिन और नाइट्रिन को लेकर। ठीक है, नाइट्रिन में फिर भी बहुत इजी होता है, क्योंकि नाइट्रिन में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ रिएक्शन होता है जहाँ पर नाइट्रिन यूज़ होता है। ठीक है, जैसे आपका ओल पीएचमेंट में होता है, और भी बहुत सारा रिएक्शन होता है जहाँ पर आपका नाइट्रिन का एक बेसिक चीज़ होता है, जहाँ पर एक ही टाइप का चीज़ होता है, पर कार्बिन को थोड़ा हमको अच्छे से जानना है। ठीक है, तो carbene, we can say carbene as a methylene. Carbene are very short-lived species. Why? Because this is a intermediate. Already I said intermediate, reaction intermediate are short-lived species. We can trap, but that can be exist very few times. Okay, depending upon stability, many intermediates stay comparatively longer, and many intermediate that is stay comparatively shorter. That should be depend on the stability factor. ओके, जो भी इंटरमीडिएट होता है रिएक्शन वो शॉर्ट लिविंग स्पीसीज ही होता है, पर वो उस शॉर्ट लिविंग स्पीसीज का अगर आप खुद कंपैरिजन करो तो तब होता है कुछ ज़्यादातर रहता है, कुछ कम तक रहता है, वो स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन carbon. Here the structure, what is the structure, that is carbon should having two bond, and these two bond any other group that should be attached with it.
ओके, कार्बन का 2 बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड के साथ कोई भी ग्रुप अटैच होता है, वो हाइड्रोजन भी हो सकता है और किसी और भी ग्रुप हो सकता है, और 2 इलेक्ट्रॉन होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक लोब में भी हो सकता है और 2 डिफाइंड लोब में भी हो सकता है। ओके, ठीक है। So on the depending on the structure, there must be, this is the examples. There you see that is this carbon having in one bond hydrogen, in one bond that is COR group, and that is there must be 2 another electron is there. Ultimately there must be the valency that should be never changed. Valency that should be remain fixed. Carbon having tetravalency, there must be also carbon having tetravalency. But the difference is that there should be 2 bond are missing, and in absence of 2 bond there should be 2 electron is there. जो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रोड्यूस करता था वो अब बॉन्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो आइसोलेटेड होकर या फिर पेयर होकर कोई भी एक लोब या 2 डिफाइंड लोब में रहेगा। ठीक है, क्लियर? ओके, पेयर मतलब ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा नहीं, ठीक है, इसको तो हम अलग से पढ़ेंगे, ये वाला चीज़ नहीं बोली हो। 2 लोब में 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ अलग अलग रह सकता है या फिर एक लोब में 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रह सकता है, पर उसमें उसका स्पिन का जो चीज़ है वो मैं बाद में बोलूँगा। ठीक है, ओके। तो हाउ दैट शुड बी फॉर्म, that is usually this is carbon is derivative of CH2. Actually this is the simplest carbon, that is CH2 carbon, because you can imagine that is by replacement of hydrogen we can get variety of carbons. Okay, formation. Okay, before formation there must be so many things are there, I already tell. Carbon's lifetime is very short living species, very short living, that is less than 1 second. If that is less than 1 second, that means 1 second से कम तक टाइम कार्बन रहता है। ठीक है, क्लियर? एंड अनस्टेबल, कार्बन इज नॉट सो मच स्टेबल, and that is highly reactive. As this is stability, that should be inversely proportional to reactivity. ओके, कोई भी सिस्टम जितना स्टेबल हो वो उतना अनरिएक्टिव होता है, और कोई भी स्पेसिस जितना अनस्टेबल होता है वो उतना ही रिएक्टिव होता है। जैसे आपको सोचो, आप कोई भी कंफर्ट जोन में हो, आपका पैसे का कोई ज़रूरत नहीं होता है, आप दिन भर ऐसे ही पैसे आपके पास चला आता है, तो आपका ना वो जो स्कार्सिटी होता है, जो आपका क्राइसिस होता है, जो हमको पैसा चाहिए नहीं तो हमारा नहीं होगा, हम सर्वाइव नहीं कर सकते, वो चीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, उसके लिए आप बहुत सारा काम, आपका अच्छा बहुत सारा जो चीज़ें हैं वहाँ पर आपका साइट, आपका क्या होता है, आप करना भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है जिसके पास पैसा हो वो कोई इनोवेटिव काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। पर क्या होता है, आपके पास जब नीड होगा आपको वो करना ही है। ठीक है, ऐसा एक फोर्स होता है, इंटरनल एक मोटिवेशन चला आता है, तो हमको करना ही है, नहीं तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा चीज़ जब आएगा तब आप बोल सकते हो कि स्टेबिलिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी। पर एक्सेप्शन बहुत सारा होता है, ऐसा बहुत इंसान है जिसके पास पैसा है पर फिर भी वो दिन भर काम करता है, और ऐसा भी बहुत इंसान है जिसके पास पैसा नहीं है पर शायद वो इग्नोर कर लेता है और सब उसका जो भी प्रेशर है वो फैमिली के ऊपर छोड़ देता है। ठीक है, ऐसा भी इंसान होता है, तो वो डिपेंडिंग ऑन द मेंटालिटी ऑफ द पर्सन, दैट इज डिफाइंड थिंग। दिस आई एम नॉट टेकिंग साइकोलॉजी क्लासेस, आई एम टेकिंग केमिस्ट्री क्लासेस, दिस इज डिफाइंड थिंग। बट जो होता है, आपके अगर अंदर में कोई भी नीड हो और आपको वो पाना ही है, ठीक है, आपको यूपीएससी क्या करना ही है तो करना ही है, वो आपका सपना है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर होगे, राइट? उसके लिए आपका इंटरनल एक मोटिवेशन आएगा। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाओगे। ठीक है, पर आपका सोचो, आपका यूपीएससी क्रैक हो गया, आप सेकेंड टाइम देना चाहते हो, ठीक है, वो आपका ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप उतना अच्छे से रिएक्टिव नहीं होगे, राइट? तो स्टेबिलिटी के साथ रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और एक्सेप्शन तो ह्यूमन बीइंग में बहुत होता है, तो ह्यूमन बीइंग आर खुद एक्सेप्शनल केसेस बनाता है, तो वो डिफाइन थिंग है। नेक्स्ट वन, बाय एलिमिनेशन रिएक्शन formation. First one, by elimination reaction. This reaction can be seen in the Riemann-Triebman reaction. Okay, Riemann-Triebman reaction में कार्बन जनरेट होता है।
फर्स्ट वन जो एसिडिक प्रोटॉन होता है, ये एसिडिक प्रोटॉन है. वाई? बिकॉज 3Cl इज देयर एंड दिस 3Cl मेकिंग -I and -I. 3 minus inductive it can be generated, and that's why there must be this hydrogen is acidic proton and KOH, K plus OH minus. So OH minus, that should be abstract proton, and that is okay. I think that is OH minus abstract proton. There must be not a HCl, I think H2 that should be released. So ultimately then again that is Cl can be released, and there must be in the reaction metal so many H plus is there, Cl minus is there, that's why there must be HCl can be produced. Okay, because in reaction so many side reaction can be happen. Okay, that is not so much important. So ultimately carbene can be generated. Okay, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता है. वो जिसके साथ ही एब्स्ट्रैक्ट हो, बेस है तो बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा. उसके बाद क्या होगा, कार्बोनाइन प्रोड्यूस होगा. कार्बोनाइन प्रोड्यूस होकर एक Cl निकल जाएगा तो कार्बीन हो जाएगा. कैसे होता है हम दिखाते हैं. ए वाला चीज़ देखो. फर्स्ट वन हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्टेड, acidic hydrogen. Then there must be carbanion can be generated, and then one Cl that should be released, and that's why there must be one Cl when released. There must be 2 bond can be remain, and जो यहाँ पर जो Cl के साथ एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग की तरह रहता था वो आइसोलेटेड हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा और 2 Cl रहेगा. ठीक है, तो एक बॉन्ड जब चला गया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन Cl का है. Cl क्या किया, Cl माइनस होकर निकल गया, तो उसका खुद का इलेक्ट्रॉन तो लेकर गया ही. ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है. मतलब देखो फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन जब निकला, हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन था, कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन था, तो हाइड्रोजन कैसे निकल गया, H प्लस होकर, तो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया. ठीक है, हाइड्रोजन गिव देयर own electron as well as carbon having their own electron, that is ultimately 2 electron that should be remain. Okay, but pentavalency, that is not good, that is not stable, so that's why there must be one another Cl that should be released. When Cl released as a Cl minus, that means having 2 electron. तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिया, Cl खुद के साथ और कार्बन का जो एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था वो भी लेकर चला गया. तो तब क्या रहा, कार्बन के साथ 2 बॉन्ड जैसा था वैसा ही रहा, और क्या हुआ, हाइड्रोजन जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देकर चला गया था और कार्बन के पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन था, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो था वो वहाँ पर ही रह गया. ठीक है, देखो व्हेन सपोज कार्बन देयर मस्ट बी हाइड्रोजन, देयर मस्ट बी 1 इलेक्ट्रॉन, देयर मस्ट बी 1 इलेक्ट्रॉन. व्हेन H प्लस रिलीज तो कार्बन नेगेटिव हो गया, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लिया और H प्लस हो गया. ठीक है, तो उसके बाद अब Cl है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये Cl लेकर चला गया. तो चला गया तो कार्बन के पास ये नेगेटिव चार्ज ही रह गया. ये नेगेटिव चार्ज अक्सर में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ही हम लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उसके साथ 2 Cl जैसा था वैसा ही हो गया. ठीक है, क्लियर. ओके, तो फॉर्मेशन, दिस इज द वन टाइप ऑफ फॉर्मेशन. देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कीटिन से आप हीट करो या HNO दो तो वहाँ पर आपका इंटरनल रिएक्शन होने के बाद कार्बिन होता है. कैसे होता है, मैं पायोलाइसिस जब रिएक्शन करूँगा या फिर थर्मोलाइसिस तब हम समझाएंगे. ठीक है, और एक डायजो जो मीथेन होता है बाहर से भी आप हीट यूज़ करो या फोटोलाइसिस यूज़ करो तो कार्बिन होता है. नेक्स्ट वन, कार्बिन बेसिकली 2 टाइप्स. वन इज ट्रिपलेट कार्बिन एंड अदर इज सिंगलेट कार्बिन. फर्स्ट वन सिंगलेट कार्बिन, देन ट्रिपलेट कार्बिन. सिंगलेट कार्बिन that should be having vacant atomic orbital, that is a p orbital that should be there due to and that should be used for back bonding. मतलब कोई भी ग्रुप के साथ जब आपका कार्बिन अटैच होगा
सोचो सिंगलेट कार्बिन जब अटैच होगा वो सिंगलेट कार्बिन लुईस एसिड की तरह भी काम करेगा, लुईस बेस की तरह भी काम करेगा, क्योंकि उसके एक लोब में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो लुईस बेस की तरह काम करेगा। और एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है जहाँ पर वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैपेबल रख सकता है, तो वहाँ पर वो वैकेंट पी ऑर्बिटल के लिए वो लुईस एसिड की तरह भी काम करेगा। क्लियर? ओके, तो दैट शुड बी पेयर्ड, these 2 electrons are paired, and that is a bend shape because this angle is 103 degree theta, and that shape is bend shape, and very few are resonance stabilized. Most of the singlet are not so much stabilized, resonance stabilized. Okay, then again singlet. Singlets carbines having resonance stabilization are found to be more stable than triplet. Generally, triplet are more stable than singlet, but when resonance stabilization is there, sometimes due to resonance stabilization, singlet gets more superiority, more stability than triplet. Okay. And like as for example, CF2 that is more stable than CF2 triplet. Okay. Usually, singlet can be generated in liquid phase in situ reaction. In situ means during reaction. आप बाहर से आप रिएक्शन करके नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो, आप रिएक्शन मिक्सचर में सब कुछ दोगे, वो रिएक्शन में इन सिटू मतलब रिएक्शन मीडियम में ही अपना ही सिंगलेट कार्बिन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ प्रोड्यूस करना नहीं है, वो खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाएगा। राइट? ओके। And by alpha elimination, why I said that alpha elimination? You see here, this elimination is one kind of alpha elimination. This elimination. Why? Because Cl is present in alpha position and Cl release from alpha position. That's why this is called alpha elimination. That's why by alpha elimination, singlet can be produced. And not singlet only, triplet can also be produced. Carbon produced by alpha elimination. And by thermolysis and pyrolysis or sometimes photolysis, and may have as Lewis base. Why Lewis base? Because there must be 2 paired electron, 2 electron that should be donatable. That's why this is Lewis base. Okay, and not only that, these 2 lone pair, these 2 electron are present is in sp2 atomic orbital. Okay, that is sp2, that is hybridization. After hybridization, sp2 atomic orbital, there from this sp2 there must be 2 electron can be donated. So that's why singlet carbon behave as Lewis base. Along with there must be, this is also act as Lewis acid. Why? Having vacant orbital. This vacant orbital, that is a vacant atomic orbital, p orbital, and this vacant orbital can capable extra electron from any other source. So that's why this is that's why singlet carbene can behave as Lewis acid as well as Lewis base. Both behave. Okay. There must be, the reaction is there, that is this CH3, CH2, CH2, CH2 lithium, that should be react with singlet. So there must be this type of reaction can be generated. Okay, this Cl incorporate in that side, this lithium incorporate at that side. So this type of reaction can also be happen. Next one we have to see in triplet. In triplet, there must be 2 defined position electrons are there, and that is 2 defined position, 2 defined lobe. Okay, and we never said carbon as a sp2, carbon as a spx, because x is in between of 1 and 2. That this is not a sp2, this is not a sp. This is an intermediate of sp2 and sp. Okay, that's why this is called as spx, and x value that is within a in between of 1 and 2. Okay, triplet carbon unpaired in 2 lobe and bend shape. This is also bend shape, and that is the angle that is 136 degree. So angle of triplet that should be much that is slightly greater than singlet carbene. Okay, because theta value of triplet that should be 136 degree, and theta value of singlet carbene that should be 103 degree. And again, more stable than singlet. Generally, triplet are more stable than singlet. Why? Because there must be the electron repulsion is minimized. That's why. But if resonance stabilized
outweigh or over making stabilization for the singlet carbene, then on that cases singlet carbene more stabilized than triplet. So there must be that is we using define compound using define example. So then you can observe the stability factors can be vary. Okay, because आपका सब चीज़ तो एक जैसा नहीं होता है. जनरली क्या होता है, ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल होता है. किससे? सिंगलेट से. उसका कारण होता है दो लोब में दो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, वो मिनिमाइज होता है ट्रिपलेट में, और सिंगलेट में क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है. इसलिए सिंगलेट लेस स्टेबल होता है. पर अगर रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन हो और वो रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन सिंगलेट को ज़्यादा स्टेबिलाइज कर दे, तो तब ऑन दैट टाइम सिंगलेट ज़्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, तो वो आपका कंपाउंड से कंपाउंड, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल वेरी होता है. ओके, आपको एग्जाम्पल देखना पड़ेगा वहाँ पर रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन होता है या नहीं होता है, या कितना एक्सटेंट तक होता है. ओके, then triplet electrons are get accommodation in single orbital, though there must be vacant one of the almost same energy. Okay, सेम एनर्जी होता है. ये जो दो लोब होता है वो सेम एनर्जी होता है और दो इलेक्ट्रॉन लेकर रहता है, तो इसलिए इसमें इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है. ओके, next one, formed in singlet carbene that should be produced in liquid phase, right, in situ. But triplet carbene can be produced in gas phase reaction by thermolysis photolysis process and by using the inert gas, that is N2 argon. Okay, N2 argon never interpret, never react, so that's why they are called inert. Okay, और जो रिएक्शन होता है वो गैस फेस रिएक्शन में इन सिटू करके थर्मोलाइसिस फोटोलाइसिस प्रोसेस से में आपका ट्रिपलेट कार्बन होता है. तो यहाँ पर आप कंपैरिजन भी कर सकते हो कि आपका कंपैरिजन में क्या आएगा, सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन का जब कंपैरिजन आएगा, याद रखना कोई भी एग्जाम में जब कंपैरिजन बोलेगा तो आपको डिफरेंस भी लेना है और उसके साथ आपका सिमिलरिटी भी लेना है. कंपैरिजन में दोनों ही आता है, डिफरेंस और सिमिलरिटी. ठीक है, पर आपका जब डिफरेंस आएगा या वर्सेस आएगा या फिर डिफरेंशिएट आएगा तब आपको सब अपोजिट लेना है. ठीक है, और जब सिमिलरिटी आएगा तब सब एक जैसा चीज़ लेना है. ठीक है, पर जब आपका कंपैरिजन आएगा आपको दोनों ही लेना है. अगर आप सिर्फ अपोजिट लो और सिर्फ सिमिलरिटी लो तो आपका मार्क्स जो होगा वो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर वो कम भी मार्क्स दे सकते हैं. ठीक है, तो आप अगर 4 मार्क्स का हो या फिर 2 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो तो आपको 4 पॉइंट्स देना है. तो वो 4 पॉइंट्स देने में आपको याद रखना है वहाँ पर आपका डिफरेंस 2 अगर दे दो और 2 अगर आप सिमिलरिटी दे दो तो वो भी अच्छा है. अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि वहाँ पर आपका डेफिनेशन आता है, एग्जाम्पल आता है, तो एक एग्जाम्पल दे दो, एक डेफिनेशन दे दो, उसके बाद एक डिफरेंस दे दो, एक सिमिलरिटी दे दो, तो आपका अच्छा सा नंबर आ जाएगा. ठीक है, तो जो कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन में दोनों ही आता है. एक कंपैरिजन है मैं जो दिया हूँ, तो अगर आपका डिफरेंस आ जाए तो याद रखना सिंगलेट कार्बन में क्या होता है, एक लोब में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और ट्रिपलेट कार्बन में 2 लोब में एक एक करके इलेक्ट्रॉन रहता है. ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या होगा, सिंगलेट कार्बन में आपका पेयर्ड होगा और ट्रिपलेट कार्बन में अनपेयर्ड होगा. तीसरा डिफरेंस क्या होगा, सिंगलेट कार्बन में थीटा वैल्यू 103 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, ट्रिपलेट कार्बन में 136 डिग्री. तीसरा क्या होगा, सिंगलेट कार्बन प्रोड्यूस इन liquid phase in situ reaction and triplet carbene can be produced in gas phase in situ reaction. Then there must be, this is enough. Okay, and remember when similarity come to always remember carbene both are electron deficient. Second one, both are bend shape. Okay, there must be this type of, and both are short living species, both are reaction mediate. So this type of so many similarity can be generated. Next one, there must be certain reaction can be carried out by carbene. First one, insertion. Insertion, then always remember singlet carbene can undergo insertion reaction but never be triplet carbene. Triplet carbene never be undergo in insertion reaction. Okay, and that should be the reaction can be occurs in CH insertion, not CC. ओके, आपका ये जो रिएक्शन हुआ देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड OH वैसा है, वैसा ही है. ठीक है,
यहाँ पर ये हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। तो ये हाइड्रोजन चला जाकर उसके बाद नहीं ठीक ही था, ये जो दिस हाइड्रोजन, दिस कार्बन हाइड्रोजन में इंसर्शन होगा, नॉट कार्बन कार्बन। आप बोल सकते हो आपका ये जब रिएक्शन होगा तब आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि इंसर्शन कहाँ पर होता है, इन कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑलवेज रिमेंबर इंसर्शन शुड बी इन द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, नॉट कार्बन कार्बन। And the reason behind of it, obviously carbon hydrogen having low electronegativity difference, but still carbon carbon having electronegativity difference that should be lower than carbon hydrogen. ओके एक ही टाइप का एटम जब होता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एकदम जीरो होता है, पर कार्बन हाइड्रोजन में जो भी है थोड़ा बहुत है, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन क्या होता है, ज़्यादा ब्रेक होने का टेंडेंसी होता है देन कार्बन कार्बन। सो दैट्स वाई कार्बन हाइड्रोजन में इंसर्शन होगा। इंसर्शन होगा, देखो इस CH2 में एक्स्ट्रा एक CH3 आ गया, एक CH2 आ गया, CH2 हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर CH3 प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर OH में ज़्यादा आपका, यहाँ पर कोई OH में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंस है, इसलिए दिस OH शुड बी ब्रेक, एंड दैट्स वाई जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन CH2 के साथ इंसर्शन होकर CH3 प्रोड्यूस कर दिया। ओके, तो दिस टाइप ऑफ इंसर्शन रिएक्शन कैन बी देयर। तो ओइंग टू द स्टेबिलाईजेशन ऑफ द डाई हेलोकार्बिन, जो डाई हेलोकार्बिन होता है वो सिंगलेट कार्बिन दैट दे डू नॉट अंडरगो इंसर्शन रिएक्शन विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन अनसब्स्टिट्यूटेड सिंगलेट कार्बिन। तो एक्सेप्शन भी होता है, जो डाई हेलोकार्बिन होता है सिंगलेट कार्बिन वो क्या होता है, बहुत सारा केस में इंसर्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन एडिशन। आपका सिंगलेट बोलो ट्रिपलेट बोलो वो एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब कोई भी डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करता है। तो याद रखना डबल बॉन्ड किस तरह का होता है, कॉम्युलेटेड डबल बॉन्ड होता है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होता है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड होता है। तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होता है जहाँ पर रेजोनेंस होता है, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। तो उसमें एडिशन वैसा नहीं होता है, उसका एडिशन थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, 1,4 एडिशन, 1,2 एडिशन, दिस टाइप का रिएक्शन होता है। तो वहाँ पर कार्बिन का ऐसा टाइप रिएक्शन हम नहीं बोला, हम बोला आइसोलेटेड डबल बॉन्ड में कैसे कार्बिन रिएक्शन होता है। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड में एडिशन हो रहा है वो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड में हो रहा है, ठीक है। कोई भी क्यूमुलेटेड और कोई भी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड में नहीं हो रहा है, रिमेंबर दैट। सो एंड ऑल्सो सिंगलेट कार्बिन स्टीरियो सिलेक्टिव एंड स्टीरियो पैसिफिक। आप याद रखो ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, अब हम सिंगलेट कार्बिन के बारे में बोल रहे हैं कि सिंगलेट कार्बिन आपका स्टीरियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट भी दे रहा है और स्टीरियो पैसिफिक प्रोडक्ट भी दे रहा है। मतलब स्टीरियो सिलेक्टिव मतलब सीस से सीस और ट्रांस से ट्रांस प्रोड्यूस हो रहा है, सीस से सीस, सीस टू सीस एंड ट्रांस टू ट्रांस कैन बी प्रोड्यूस, दैट मीन्स देयर शुड बी not the stereo can be changed, that's why this is called stereo selective. And stereo specific because there must be only 100% product that should be generated, that's why stereo specific. Okay, generally we call that is stereo selective, that means there should be the two type of enantiomer can be generated, that is one major other minor. But when in any reaction stereo selective along with stereo specific is given, you have to empower on stereo specific factor, so there must be obviously 100% one product can be generated. So there must be the question arises, what do you mean by stereo selective on that cases? What do you mean by stereo selective term on that cases? That means there should be, the stereo can be unchanged. Stereo, that means cis to cis and trans to trans can be there. Syn to syn or anti to anti configuration should be there. R configuration to R configuration gate, S configuration to S configuration gate, D to D and L to L, that should be changed. That should be gate. So that means the stereo that should be unchanged. That's why there must be stereo selective term can be used. And stereo specific that should be empowered, that means 100% one product can be generated. क्लियर? आपका जो कोई भी जगह अगर आप स्टीरियो सिलेक्टिव देखो उसका मतलब ये होता है वहाँ पर सीस ट्रांस दो टाइप का प्रोडक्ट होगा, एक मेजर होगा एक माइनर होगा, राइट। और स्टीरियो पैसिफिक आप जब देखोगे तब आप क्या श्योर होगा कि कोई 100% एक प्रोडक्ट हो रहा है, राइट। पर जब ये दोनों टर्म एक रिएक्शन में लिखा होता है स्टीरियो सिलेक्टिव एज वेल एज स्टीरियो पैसिफिक, दैट मीन्स क्या होता है आपको स्टीरियो पैसिफिक को एम्पावर करना है, ज़्यादा फोकस करना है, मतलब वहाँ पर वन प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस होगा, 100% वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, राइट। तो दैट मीन्स स्टीरियो पैसिफिक। अब क्वेश्चन आता है तो स्टीरियो सिलेक्टिव क्यों लिखा हुआ है? उसका मतलब होता है आपका सीस से सीस ट्रांस से ट्रांस प्रोड्यूस होगा, कोई भी स्टीरियो चेंज नहीं होगा, कोई भी ज्योमेट्रिकल चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो cis addition that should be syn fashion
आपका एडिशन सीन होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा, अब कोई भी ट्रांस वाला एडिशन नहीं होगा, सीन एडिशन होगा। कोई भी CH2 देखो वो एक ही जगह से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, एक ही साइड से रिएक्शन कर रहा है, उसका मतलब सीन एडिशन होता है। और स्टीरियो सिलेक्टिव दैट मीन्स सिस एल्किन टू सिस प्रोड्यूस हो रहा है, ट्रांस एल्किन टू ट्रांस प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। नेक्स्ट वन, ये जो कार्बिन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन फाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है, बहुत सारा लोग में एक कन्फ्यूजन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफाइल। ऑलवेज रिमेंबर देयर मस्ट बी ए ट्रिक। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है, तो ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम होगा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन का कमी है, ठीक है। और न्यूक्लियस लविंग ग्रुप वो न्यूक्लियस को प्यार करता है। न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज कोई भी स्पीसीज को प्यार करता है, तो वो खुद नेगेटिवली चार्ज है, वो उसमें पॉजिटिव चार्ज का कमी है, राइट। तो जैसे कोई भी नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी लोन पेयर कॉन्टेनिंग स्पीसीज हो, वो न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, याद रखना। ओके, जैसे सोचो जो फर्स्ट देखो मेरे क्लास में मैं जब 1 से 10 तक रोल नंबर का था, तब क्या होता, जो लास्ट वाला जो स्टूडेंट्स होता था वो मुझे कोई भी होता है ना सेलिब्रिटी की तरह बिहेव करता था, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, मेरे पास बहुत सारा नंबर है, ठीक है, मेरे पास एक रोल नंबर का रैंक है, उसके पास नहीं है, इसलिए उसके पास मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, ठीक है, उसके पास वो कमी है, इसलिए मैं उसके पास सेलिब्रिटी हूँ, ठीक है। अब सोचो कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, तो वो मेरे पास सेलिब्रिटी है, व्हाई, बिकॉज आई हैविंग नो बिजनेस, आई हैविंग नो सच बिगर थिंग, बिगर इनोवेशन, सो वो चीज़ मेरे पास कमी है, तो वो मेरे पास सेलिब्रिटी है। तो ऐसा एक चीज़ होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, सेलिब्रिटी तो सेलिब्रिटी होता है, पर हम कॉमन पर्सन को भी कभी कभी सेलिब्रिटी मानते हैं, उसके कारण होता है उसका जो चीज़ उसके पास है वो मेरे पास नहीं है, ऐसा एनालॉजी भी रहता है, ठीक है। जो सेलिब्रिटी होता है वो सेलिब्रिटी होता है, वो अनचेंज होता है, पर हम लोग के आसपास में जो रहता है उसको भी हम लोग कभी कभी सेलिब्रिटी मान लेते हैं। उसका कारण एक होता है, बहुत सारा कारण होता है, उसमें एक कारण होता है कि उसके पास जो है वो मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास वो बहुत बड़ा एक इंसान है। सपोज जो UPSC क्रैक किया, वो खुद को सेलिब्रिटी नहीं मानता है, पर मैंने UPSC क्रैक नहीं किया, तो मेरे पास लग रहा है वो सेलिब्रिटी है, कितना कुछ किया, तो वो मेरे पास सेलिब्रिटी है, ठीक है। अगर सोचो क्या बोलूँ, कोई भी कैरेक्टर कर रहा है, ठीक है, सोचो तुम कैरेक्टर नहीं जानते हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास वो बहुत स्पेशल है, ठीक है, ऐसा बहुत चीज़ होता है, ठीक है। तो यही होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो न्यूक्लियस लविंग ग्रुप होता है, उसके पास कोई न्यूक्लियस या कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, उसके पास पॉजिटिविटी का स्कार्सिटी है, पॉजिटिविटी का डेफिशिएंसी है, इसलिए वो पॉजिटिविटी को प्यार करता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, ठीक है। तो अब सोच लो किसके पास इलेक्ट्रॉन कमी हो सकता है, किसके पास पॉजिटिविटी का कमी हो सकता है, ठीक है। तो जो कार्बन होगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप होगा, तो ऑब्वियसली वो किसके साथ बाइंड कर सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ बाइंड कर सकता है, क्योंकि आप जानते हो सिग्मा बॉन्ड से ज़्यादा पाई बॉन्ड लैबाइल होता है, पाई बॉन्ड ज़्यादा ब्रेक करने का टेंडेंसी होता है, उसका एक कारण होता है लैटरल ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल, दैट्स वाई लैटरल ओवरलैप एंडोन ओवरलैप से कम इफेक्टिव होता है, इसलिए ज़्यादा लेवल होता है, इसलिए पाई बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, पाई बॉन्ड डेंस एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, तो ऑब्वियसली वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा। आप ये चीज़ कोई दूसरा फैक्टर से भी समझ सकते हो, सपोज एज पर एग्जांपल आप कोई भी किसी भी फ्रेंड के साथ आप बॉन्डिंग करना चाहते हो, मतलब एक इमोशनल बॉन्डिंग, ठीक है, आप देखना
कोई भी इंसान उसके पास ही रहना चाहता है जिसके पास उसका कदर होता है, ठीक है. द पर्सन दैट शुड बी स्टे इन दैट प्लेस, इन दैट नियर अ पर्सन व्हेयर देयर मस्ट बी द वैल्यू ऑफ दैट पर्सन दैट शुड बी देयर. ओके, अगर वैल्यू ना हो तो वो ज़्यादा देर तक वो कोई भी स्पेस हो, कोई भी इंसान हो, उसके साथ नहीं रहना चाहता है, ठीक है. तो दिस थिंग इज ऑल्सो देयर. आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देना चाहते हो, आप पाई बॉन्ड हो, आप किसको दोगे? जिसके पास आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कदर होगा, ठीक है. तो किसके पास कदर होगा? इलेक्ट्रोफाइल के पास, राइट. दैट्स व्हाई देयर मस्ट बी रिएक्शन कैन बी गोइंग ऑन. ओके, रिएक्शन कैन बी गोइंग ऑन. Electron assignment, the pi electron of the alkene and its MTP orbital donates its lone pair. So I already said that is carbon is Lewis acid as well as Lewis base. That's why in one hand it accepts the electron pair from the pi bond. In another hand it donates its lone pair to the electron deficient carbon atom. आपका कोई भी पाई बॉन्ड जब बेक होगा ना, यहाँ पर ऐसे बेक होता है, पाई बॉन्ड ऐसे बेक होकर उसके बाद जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पर जहाँ से बेक हुआ उसके पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है. तो कार्बिन एक हैंड से, मतलब यहाँ से एक्सेप्ट किया लोन पेयर, ठीक है. लोन पेयर तो नहीं, पाई क्लाउड एक्सेप्ट किया, और दूसरा हैंड से वो एक कार्बन को दे भी दिया, ठीक है. तो बाय दिस वे दिस टाइप ऑफ कंपाउंड कैन बी जनरेटेड, ठीक है. आप कार्बिन है, कार्बिन का यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगलेट कार्बिन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर पी ऑर्बिटल है. आपका डबल बॉन्ड ऐसे बेक होता है, ऐसे बेक होता है, तो क्या होगा? यहाँ पर डेल पॉजिटिव होगा, यहाँ पर डेल नेगेटिव होगा. तो ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ से यहाँ आया, ठीक है. और वो उसके बाद क्या किया? ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर दे दिया. तो बाय दिस वे दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कैन बी गोइंग ऑन. ओके, सो थैंक यू. एंड नेक्स्ट आई विल स्टार्ट विथ अगेन carbene, that the rest part, that is triplet carbene. Okay, and carbene is very vital to understand. And thank you, and please subscribe and share, comment and like our chemistry channel, and thank you so much.